اب سے 2 دن بعد سندھ ہائی کورٹ میں ایک 15 سال پرانے قتل کیس میں ملزم کی حوالگی سے متعلق ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ یہ سماعت ایک ایسے قتل کیس سے متعلق ہے جس میں ملزم کا سراغ ریاست کے بجائے خود مقتول کی بیٹی نے 12 سال کی محنت کے بعد لگایا ہے، اور وہ گزشتہ 3 سال سے پاکستانی حکام سے درخواست کر رہی ہے کہ ملزم کو، میرے باپ کے قاتل کو وطن واپس لایا جائے تاکہ وہ قانون کا سامنا کر سکے اور انصاف ہو سکے، مگر اب تک ریاست اس معاملے پر ناکام نظر آئی ہے۔ اور مقتول کی بیٹی نے اس ناکامی پر نہ صرف اس کمپنی پر سنگین الزامات لگائے ہیں جہاں مقتول کام کرتا تھا اور جہاں اس کا قتل ہوا تھا، بلکہ وزارت خارجہ پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ یہ کیس اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے سابقہ ریجنل چیف محمد احمد امجد کے قتل کا ہے۔ محمد احمد امجد کا قتل 26 اگست 2008 کو ہوا، لیکن اس قتل سے پہلے ہی اسٹیٹ لائف انشورنس کے اندر بہت کچھ چل رہا تھا، اور کمپنی کی اندرونی خط و کتابت کا جائزہ لینے کے بعد یہ تاثر ملتا ہے کہ اگر ادارہ وقت پر ایکشن لے لیتا تو شاید یہ واقعہ ہی نہ ہوتا، یا کم سے کم کمپنی کے دفتر کے اندر یہ واقعہ نہ ہوتا، کیونکہ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کی اندرونی خط و کتابت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ محمد احمد امجد نے کمپنی کے سابقہ سیلز مینیجر اور اس کیس کے ملزم سید تقی حیدر شاہ کے خلاف مختلف شکایات کی تھی، مگر ان شکایات کے باوجود کمپنی کے دفتر کے اندر ہی ان کا قتل کر دیا گیا۔ 28 جولائی کو ریجنل چیف محمد احمد امجد نے کمپنی کے زونل ہیڈ خالد شیخ کو خط لکھا، جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس خط میں محمد احمد امجد نے موقف اختیار کیا تھا کہ 25 جولائی 2008 کو مجھے مختلف فیلڈ ورکرز اور ایریا مینیجرز سے اطلاع ملی ہے کہ سید تقی حیدر شاہ میرے خلاف نازیبا زبان صرف اس بنیاد پر استعمال کر رہا ہے کہ میں نے ان کے نئے ایریا مینیجر کے ساتھ اٹیچمنٹ کی درخواست کا مثبت جواب نہیں دیا ہے، اور اب سے 1 دن پہلے جب میں اپنے دفتری کام میں مصروف تھا تو تقی حیدر شاہ میرے کمرے میں داخل ہوا اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ میں ان کی اٹیچمنٹ کی دستاویزات پر دستخط کر دوں۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ان معاملات میں کارپوریٹ پالیسی فیصلوں کا پابند ہوں، لیکن محمد تقی حیدر شاہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھے اور نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے وہ کمرے سے چلے گئے۔ محمد احمد امجد نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ اس واقعے کے بعد سے سید تقی حیدر شاہ مجھے سنگین نتائج کی دھمکی دیتے رہے اور غصے کا اظہار کرتے رہے، اور انہوں نے ایریا مینیجر کے سامنے اسلحے کی نمائش بھی کی اور اپنی اس نیت کا اظہار بھی کیا کہ وہ بدلے کے طور پر اسے میرے خلاف استعمال کریں گے۔ اور پھر 25 جولائی 2008 کو تقریباً رات 9 بجے جب میں دفتر سے اپنے گھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تقی شاہ میری گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے، اور اس نے متعدد دفعہ میری گاڑی کو ٹکر بھی ماری تاکہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور پھر وہ لالہ زار میں میرے گھر تک میرا پیچھا کرتا رہا۔ یہ میرے لیے حیران کن تھا کہ تقی شاہ ایک ایسے مجرمانہ عمل تک جا سکتا ہے۔ میں یہ معاملہ ضروری ایکشن کے لیے آپ کے سامنے ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سیلز مینیجر آپ کے زون میں آتا ہے اور زونل مینجمنٹ کی طرف سے اس کے کنڈکٹ اور مجرمانہ سرگرمی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی سنگین حادثے سے بچا جا سکے۔ یعنی قتل ہونے والے افسر نے اپنے قتل سے 1 ماہ پہلے ہی باقاعدہ اپنی جان کو لاحق خطرات سے متعلق اسٹیٹ لائف انشورنس کے زونل ہیڈ خالد شیخ کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا تھا۔ پھر خالد شیخ نے 3 دن بعد یعنی 31 جولائی 2008 کو تقی حیدر شاہ کو شو کاز نوٹس جاری کیا، اور تقی حیدر شاہ نے 2 اگست کو ان الزامات کی تردید کر دی، مگر محمد احمد امجد نے نہ صرف تقی حیدر شاہ کے رویے سے متعلق کارروائی آگے بڑھائی بلکہ ان کی مبینہ مالی بے ضابطگی کے حوالے سے بھی مینجمنٹ کو شکایات کی اور ایکشن لینے کی درخواست بھی کی۔ اور 7 اگست کے اپنے خط میں قتل ہونے والے افسر محمد احمد امجد نے لکھا کہ 1 اگست 2008 کو میں اسٹیٹ لائف کے ڈویژنل ہیڈ مارکیٹنگ منظور احمد سے ملنے گیا، اور میں نے دیکھا کہ تقی شاہ ان کے کمرے میں بیٹھا ہے، اور ہچکچاتے ہوئے میں وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکا، اور بات چیت کے دوران تقی حیدر شاہ نے ڈویژنل ہیڈ کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ اس نے میری گاڑی کا پیچھا کیا ہے اور اسلحہ رکھنا اس کے لیے معمول کا کام ہے۔ تقی حیدر شاہ پر بہت سی مالی بے ضابطگیوں کا الزام ہے، اور اس سے 30 لاکھ کی وصولی کا عدالتی فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور اس کے اس رویے سے ادارے کا نام بدنام ہوتا ہے، اس لیے تقی حیدر شاہ کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور پھر 7 اگست 2008 کے اپنے خط میں ریجنل چیف محمد احمد امجد نے واضح طور پر یہ بھی لکھا کہ زونل لیول پر کچھ افراد اپنے ذاتی مفادات کے لیے تقی حیدر شاہ کو اشتعال دلا رہے ہیں۔ یہ وہ خط و کتابت تھی جو خود مقتول کی طرف سے انشورنس کمپنی کی انتظامیہ کو لکھی گئی، جس کے بعد تقی حیدر شاہ کی نئے ایریا مینیجر رانا شفیع کے ساتھ اٹیچمنٹ کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ اور پھر 26 اگست 2008 کو جب ریجنل چیف محمد احمد امجد اپنے دفتر میں بیٹھے تھے تو ایک شخص دفتر میں داخل ہوا اور اس نے انشورنس کمپنی کے ریجنل چیف محمد احمد امجد پر 10 گولیاں چلائیں، اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے انہیں گولیاں مار کر دفتر سے باہر بھی چلا گیا، جس کے بعد زخمی حالت میں محمد احمد امجد کو اسپتال لے جایا گیا، اور پھر 4 دن بعد ان کی موت ہو گئی۔ لیکن محمد احمد امجد کو گولیاں مارنے والا شخص کون تھا؟ اس حوالے سے اسٹیٹ لائف انشورنس کے 3 ملازموں نے گواہی دی اور دعویٰ کیا کہ وہ شخص تقی حیدر شاہ ہی تھا۔
वही तकी हैदर शाह जिसके अटैचमेंट की दरख्वास्त मोहम्मद अहमद अमजद ने बतौर रीजनल चीफ मुस्तरद की थी। मोहम्मद अहमद अमजद के कत्ल की गवाही देने वाले 3 लोगों में से एक मोहम्मद अहमद अमजद के पर्सनल असिस्टेंट मोहम्मद आरिफ थे, जो न सिर्फ इस केस में गवाह हैं बल्कि उनकी मुद्दत में ही यह मुकदमा दर्ज किया गया था। दूसरे गवाह मोहम्मद अहमद अमजद के नायब कासिद शाहिद गुल हैं और तीसरे गवाह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के सेल्स मैनेजर सऊद सलीम हैं, जो कत्ल के वक्त मोहम्मद अहमद अमजद के कमरे में मौजूद थे। पहले गवाह मोहम्मद आरिफ ने पुलिस को दिए गए बयान में मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि मैं मोहम्मद अहमद अमजद साहब का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। 26 अगस्त 2008 को सुबह 11:30 बजे मोहम्मद अहमद अमजद साहब हेड ऑफिस से अपने ऑफिस आए और वो जैसे ही अपनी सीट पर बैठे तो एक मेहमान सऊद सलीम भी आ गए और फिर तकरीबन 2 मिनट बाद तकी शाह नामी शख्स जो हमारे इदारे में सीनियर मैनेजर है वो अहमद अमजद साहब के कमरे में चला गया और उसके अंदर जाने के फौरन बाद फायरिंग की आवाज़ आई। मैं फ़ोन छोड़कर उनके कमरे में गया तो तकी शाह पिस्तौल हाथ में पकड़े बाहर निकला और मोहम्मद अहमद अमजद साहब को गोलियां लगी हुई थी। मैंने शोर शराबा किया तो दूसरे ऑफिस के लोग भी आ गए और हम उनको अस्पताल ले गए। मेरा दावा है कि रीजनल चीफ मोहम्मद अहमद अमजद को ऑफिस के इख्तिलाफात की वजह से तकी शाह ने गोलियां मारकर जख्मी किया है, जो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। जबकि दूसरी गवाह नायब कासिद शाहिद गुल ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि सुबह 11:30 बजे मोहम्मद अहमद अमजद साहब अपने ऑफिस पहुंचे। सऊद सलीम जो स्टेट लाइफ के सेल्स मैनेजर हैं वो भी उनके साथ थे। मैंने एयर कंडीशनर चलाया, अमजद साहब ने मुझे चाय तैयार करने को कहा। मैं चाय बनाने के लिए किचन चला गया और 2-3 मिनट बाद ही फायरिंग की आवाज़ आई और मैं परेशानी के आलम में बाहर निकला और देखा कि तकी हैदर शाह के हाथ में पिस्तौल थी और वो अमजद साहब के दफ्तर से निकल रहा था और जब मैं अंदर गया तो अमजद साहब जख्मी हालत में पड़े हुए थे। जबकि इस केस के तीसरे गवाह जिन्होंने पुलिस को अपना बयान दिया था वो सऊद सलीम हैं, जो इस वाक़े के चशमदीद गवाह हैं, क्योंकि वो उस वक्त उसी कमरे के अंदर मौजूद थे जहां मोहम्मद अहमद अमजद का कत्ल हुआ। सऊद सलीम के बयान के मुताबिक मैं 27 अगस्त 2008 को रिटायर हो रहा था और 26 अगस्त को मैं अलविदाई मुलाकात के लिए मोहम्मद अहमद अमजद के दफ्तर आया, लेकिन वो ऑफिस में मौजूद नहीं थे। मैं वापस जाने के लिए लिफ्ट के पास खड़ा हो गया। लिफ्ट खुली तो मोहम्मद अहमद अमजद साहब वहां से बाहर निकले और मुझे अपने ऑफिस ले आए। ऑफिस आते ही अमजद साहब ने शाहिद गुल को चाय तैयार करने के लिए कहा और हम बातों में लग गए। इसी दौरान तकी हैदर शाह कमरे में दाखिल हुआ और उसने अपने कोट से पिस्तौल निकाली और अमजद साहब को जान से मारने की नीयत से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। मैं उसी वक्त अपनी जान बचाकर दूसरे फ्लोर पर चला गया और कुछ देर बाद मुझे पता चला कि मोहम्मद अहमद अमजद को अस्पताल ले जाया गया है। यानी इन तीनों बयानात से ये इल्ज़ाम सामने आता है कि तकी शाह पिस्तौल लेकर रीजनल चीफ के दफ्तर में दाखिल हुआ और उसे कोई रोकने वाला नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इस हकीकत के बावजूद नहीं थी कि कत्ल से कुछ दिन पहले ही मोहम्मद अहमद अमजद ने अपनी इंतजामिया को अपनी जान को लाहक खतरात से आगाह कर दिया था और इस हवाले से तकी हैदर शाह का नाम भी लिया था। बहरहाल इस वाक़े के बाद तकी हैदर शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया मगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी और फिर 11 मई 2009 को कराची की सेशन अदालत ने तकी हैदर शाह को इश्तिहारी करार दे दिया और फिर 29 जनवरी को एडिशनल सेशन जज ने तकी हैदर शाह की गिरफ्तारी तक इस केस को डोरमेंट फाइल में डालने के अहकाम दे दिए और कत्ल होने के 12 साल तक मुलजिम का कुछ पता ही नहीं चला। बज़ाहिर ना रियासत ने कोई दिलचस्पी जाहिर की और मकतूल के ख़ानदान के मुताबिक ना ही स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने इस केस में कोई दिलचस्पी ली। अहम बात यह है कि जिस वक्त मोहम्मद अहमद अमजद का कत्ल हुआ था तो उनकी एक बेटी माहम अमजद की उम्र सिर्फ 15 साल थी और 15 साल की उम्र से ही वो अपने वालिद के कत्ल में मुलविस मुलजिम का सुराग लगाने की कोशिश करती रही। 5 साल पहले माहम अमजद मुत्तहदा अरब अमारात शिफ्ट हो गई और वहाँ मार्केटिंग और रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ गई। फिर अक्टूबर 2020 में अपने रूटीन सर्च के दौरान माहम अमजद को एक लिंक्डइन प्रोफाइल नजर आई जिस पर तकी हैदर शाह का नाम लिखा हुआ था और दिलचस्प बात यह है कि उस प्रोफाइल में तकी हैदर शाह ने अपनी मुलाजमत के तजर्बे में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान का नाम भी दर्ज किया हुआ था और यहीं से माहम अमजद ने 12 साल बाद अपने वालिद के कत्ल में मुलविस मुलजिम का सुराग लगा लिया और पाकिस्तान में इस हवाले से कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और तकी शाह का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन 2022 को तकी हैदर शाह को इस पूरे मामले की भिनक पड़ गई और उसने नवंबर 2022 को मस्जिद नबवी में बैठकर एक वीडियो पैगाम जारी किया और मस्जिद नबवी में बैठकर उस शख्स ने मोहम्मद अहमद अमजद के कत्ल की तो तरदीद की मगर वो इस कत्ल से मुताल्लिक़ खुशी का इजहार भी करता रहा। मस्जिद नबी में बैठकर ये शख्स जिस पर कत्ल करने का इल्ज़ाम है मकतूल के बारे में कह रहा था कि मैंने नहीं किया, जिसने भी किया बहुत अच्छा किया, मगर सवाल ये है कि अगर तकी शाह इस कत्ल में मुलविस नहीं था तो वो मुल्क से फ़रार क्यों हुआ, वो 15 सालों से अदालतों से फ़रार क्यों इख्तियार कर रहा है। बहरहाल इस धमकी आमेज़ वीडियो के बाद माहम अमजद ने दुबई हुकाम के सामने शिकायत दर्ज की और इतलात के मुताबिक वहाँ के हुकाम ने तकी हैदर शाह को नो ट्रैवल लिस्ट में डाल दिया, यानी सफ़र करने पर पाबंदी लगा दी। और फिर पाकिस्तान में माहम अमजद ने अदालती कार्रवाई का सहारा लेकर तकी हैदर शाह के खिलाफ पाकिस्तान से रेड नोटिस जारी करवाया। लेकिन इन वाक़यात के बाद पाकिस्तानी हुकाम का जो कंडक्ट सामने आया है वो हैरान कुन है।
रेड नोटिस जारी होने के बाद जनवरी 2023 को मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने तकी हैदर शाह को गिरफ्तार कर लिया और फिर इंटरपोल मुत्तहिदा अरब अमारात ने जनवरी 2023 में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो पाकिस्तान को खत लिखा और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तकी हैदर शाह गिरफ्तार हो चुका है, उसकी पाकिस्तान को हवालगी के लिए एक्सट्रेडिशन फाइल 30 दिन के अंदर फराहम की जाए और इन दस्तावेज़ात की अरबी तर्जुमे के साथ अटेस्टेशन होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने इस एक्सट्रेडिशन फाइल में 7 चीज़ों का मुतालबा किया था, जिसमें तस्दीक शुदा FIR की कॉपी, अदालती फैसला, जुर्म की मुतालिका शिक, गवाहों के बयानात, प्रोसिक्यूटर का हल्फनामा और मुल्जिम की शनाख्त की तफसीलात शामिल थीं। और फिर जब पाकिस्तान ने यह फाइल मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम को जमा कराई तो 2 मार्च 2023 को मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत इंसाफ ने उस फाइल पर 5 एतराज़ात आयद कर दिए और फाइल वापस करके मुल्जिम की हवालगी के लिए इन एतराज़ात को 30 दिन के अंदर दूर करने का कहा। और फिर जब ये फाइल वापस हुई तो ये मुख्तलिफ महकमों में घूमती रही और मामला मार्च से मई तक चला गया और 29 मई को वज़ारत दाखिला ने एक बार फिर एतराज़ात दूर करके मामला अबू धाबी में पाकिस्तानी मिशन को भिजवा दिया और एक बार फिर यह फाइल मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम को जमा करवा दी गई। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत इंसाफ ने एक बार फिर इस फाइल पर एतराज़ लगा दिया और 23 जून के अपने ख़त में लिखा कि पाकिस्तान की तरफ से जमा करदा दस्तावेज़ात में पाकिस्तान की सेंट्रल अथॉरिटी की तहरीरी दरख्वास्त शामिल नहीं है, इसलिए मुल्जिम की हवालगी के लिए ये फाइल वापस की जाती है और पाकिस्तानी हुकाम से दरख्वास्त की जाती है कि वो इस मामले को तेज़ी से आगे बढ़ाएं और 30 दिन के अंदर इसे मुकम्मल करें ताकि हम एक्शन ले सकें। फिर ये फाइल घूमती घूमती जुलाई 2023 को पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला तक पहुंची, जो इस मामले में सेंट्रल अथॉरिटी है। और फिर वज़ारत दाखिला के सेक्शन अफसर महर महमूदी ने 17 जुलाई को पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम को मुखातिब करके ख़त लिखा, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जिस तहरीरी दरख्वास्त का मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने मुतालबा किया है वो पहले ही 26 मई की फ़ाइल में दे दिया गया है और उसकी एक कॉपी दोबारा मुंसलिक की जा रही है। यानी वज़ारत दाखिला ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात जुलाई में जिस दस्तावेज़ का मुतालबा कर रहा है वो तो वज़ारत दाखिला वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए 26 मई को ही भिजवा चुकी थी और एक बार फिर तसल्ली के लिए उसकी कॉपी लगाई जा रही है। मगर हैरानकुन बात यह है कि यह फाइल जमा होने के बाद फिर अगस्त में एक बार फिर मुत्तहिदा अरब अमारात फाइल को एतराज़ात लगाकर वापस भेज देता है, लेकिन इस बार वही इब्तिदाई 5 एतराज़ात लगा दिए जाते हैं जो मई 2023 में ही वज़ारत दाखिला दूर करके वज़ारत ख़ारजा को भेज चुकी थी। और फिर 25 अगस्त को वज़ारत दाखिला के सेक्शन अफसर का यह बयान सामने आता है कि इस केस में जितनी भी दस्तावेज़ात का तकाजा किया गया है कि वो वज़ारत ख़ारजा को दे दी गई हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस वो तमाम दस्तावेज़ात फराहम करने के बावजूद दोबारा आ रही हैं जो परेशान कुन है। वज़ारत ख़ारजा इस मामले में मुदाखलत करे और तकी शाह की हवालगी के लिए सिफारती कोशिशें की जाएँ। वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से तमाम ज़रूरियात पूरी कर दी हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम ऑब्जर्वेशंस को भी निपटा दिया गया है और अब कोई वजह नहीं बचती कि इस फाइल को दोबारा वज़ारत दाखिला को भेजा जाए। और फिर 31 अगस्त को तकी शाह की हवालगी की फाइल पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात दोबारा भेज दी गई और 6 सितंबर को पाकिस्तानी मिशन ने वज़ारत ख़ारजा को आगाह किया कि इस फाइल में आलमी गिरफ्तारी के वारंट मौजूद नहीं है। और फिर 19 सितंबर को वज़ारत दाखिला ने जवाब दिया कि आलमी गिरफ्तारी के वारंट तो पहले ही मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ शेयर किए जा चुके हैं और रेड नोटिस तक तो ऑनलाइन रसाई भी हासिल की जा सकती है। जिसके बाद 23 अक्टूबर को वज़ारत ख़ारजा के डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने सिंध हाई कोर्ट में यह बयान जमा करवाया कि सैयद तकी हैदर शाह की हवालगी के लिए हमारा मिशन मुसलसल मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से रब्ता कर रहा है। इस हवाले से उन्हें 11 अक्टूबर को एक रिमाइंडर भेजा गया है और जैसे ही इस हवाले से कोई जवाब आता है तो अदालत को इस हवाले से आगाह किया जाएगा। जबकि इससे पहले वज़ारत ख़ारजा अदालत को यह भी बता चुकी थी कि सैयद तकी हैदर शाह अबू धाबी में ज़ेर हिरासत नहीं है और ना ही वो दुबई पुलिस की कैद में है और अब इस केस की मज़ीद समाअत 6 दिसंबर यानी 2 दिन बाद होगी। यानी मकतूल मोहम्मद अहमद अमजद की बेटी महम अमजद ने अब से 3 साल पहले और कत्ल के 12 साल बाद अपने वालिद के कातिल को ढूंढ लिया। फिर उसे भी इंसाफ के लिए मज़ीद जिद्दोजहद करनी पड़ी और फिर तवील जिद्दोजहद के बाद रवा साल जनवरी में मुल्जिम की हवालगी का मामला शुरू हुआ और 11 माह बाद अब दिसंबर तक वो मामला भी हल नहीं हो सका है। और मकतूल की बेटी ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात में ही पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से ये फाइलें घुमाई जा रही हैं। इस पूरे मामले पर वज़ारत दाखिला के एक ज़राए ने हमारे नुमाइंदे वाजिद बलोच से बात करते हुए बताया है कि इस केस में मुतासरा ख़ानदान के साथ जुल्म हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात के इब्तिदाई एतराज़ात दुरुस्त थे जिन्हें हल कर दिया गया था, उसके बाद मुसलसल दोबारा एक ही जैसे एतराज़ात का सामने आना हैरानकुन था। मैंने अपनी पोस्टिंग के दौरान मुल्जिम की हवालगी का ऐसा केस ही नहीं देखा जहां मुत्तहिदा अरब अमारात बार बार एतराज़ात लगा कर भेज रहा है। मुझे नहीं मालूम ऐसा आखिर क्यों हो रहा था, लेकिन ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं थी। हमने दफ्तर ख़ारजा से उनके मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया और उनको सवालात भेजे तो दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने जवाब देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया
कि वजारत दाखिला से मिलने वाली दस्तावेजात में एम्बेसी कोई तब्दीली नहीं कर सकती। मुतल्लिका केस फरवरी 2023 को मुत्तहदा अरब अमारात को भिजवाया गया था और तब से दोनों हुकूमतों का आपस में राब्ता रहा है। हमने मुल्जिम की हवालगी के लिए तमाम इजाफी तफसीलात फराहम कर दी हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुल्जिम की हवालगी मुत्तहदा अरब अमारात के कवानीन के मुताबिक है। हमें इस हकीकत का इल्म होना चाहिए कि मुल्जिम की हवालगी से मुतालिक जो म्यूचुअल असिस्टेंस के मामलात होते हैं उन पर मुतल्लिका हुकूमतों की तरफ से गौर व फिक्र किया जाता है, इसलिए ऐसे केसेस में वक्त लगता है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने मजीद कहा कि हकाइक को मस्क करने और एक्स्ट्राडिशन फाइल से छेड़छाड़ करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन की हर फाइल को वजारत खारजा और काउंसलर अफसर समेत तमाम मुतल्लिका कानून नाफिज करने वाली एजेंसी ने स्टैंप और अटेस्ट किया हुआ है। ये केस इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और मुत्तहदा अरब अमारात में हमारा सिफारत खाना अदालती अहकामात की मुकम्मल पैरवी कर रहा है। ये दफ्तर खारजा का इस मामले पर रद्द-ए-अमल था जो हमने आपके सामने रखा है। साथ ही हमने मुल्जिम तकी हैदर शाह के बेटे ज़ैनुल आबदीन को सवालनामा भेजा कि अगर आपके वालिद के मुताबिक वो कातिल नहीं हैं तो वो 15 साल से मफरूर क्यों हैं, तो उन्होंने उसका हमें कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा मकतूल की बेटी माहम अमजद का दावा है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस उनकी मदद करने के बजाय मुल्जिम और उसके ख़ानदान को सहूलियात फराहम करता रहा और मुल्जिम तकी हैदर शाह मुत्तहदा अरब अमारात में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के दफ्तर भी जाता रहा है और उनके लिए काम भी करता रहा है। साथ ही माहम अमजद का यह भी दावा है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने उनके वालिद के कत्ल के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और मुल्जिम का नाम ECL में डालने के लिए भी इदारा गलत बयानी करता रहा और उनके वालिद के कत्ल की FIR इदारे के कहने पर नहीं काटी गई, बल्कि ये उनके वालिद के पर्सनल असिस्टेंट का इनफरादी फैसला था। इस पूरे मामले पर हमने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान से रब्ता किया और उन्हें सवालनामा भेजा तो उन्होंने हमें कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद मकतूल मोहम्मद अहमद अमजद की बेटी माहम अमजद, जो मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद हैं और 15 साल से अपने वालिद को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ रही हैं। एक ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं।